Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to see a moral story from Standard 5 English. And the story name is Three Sacks of Rice. Let's start. You may have read many stories about three brothers. Usually two of them, especially the elder ones, are strong, clever, but unkind. They laugh at the youngest ones because he is too simple and soft-hearted. ज्यादातर कहानियों में बड़े भाई ताकतवान, बुद्धिवान पर लोभी, अनकाइंड यानी निर्दयी होते हैं और छोटे भाई हमेशा दयालु और इनोसेंट होते हैं। लेकिन हमारे इस कहानी में थोड़ा बदलाव है। Our story also has three brothers who live in a small town, but they were all of them honest, kind and hardworking. ये तीन भाई ऑनेस्ट यानी ईमानदार, काइंड दयालु और हार्ड वर्किंग यानी मेहनती थे। द एल्डर वन ran a shop. The middle one was a priest, पुजारी, and the youngest one had just finished his education. सबसे छोटा वाला भाई अपनी पढ़ाई पूरी करके अब छोटे मोटे काम करता था और व्यापार सीख रहा था। He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. Trade means business, व्यापार. One day, their father's friend visited the mother. एक दिन ये तीन भाइयों के पिताजी के मित्र उनके माताजी से कहते हैं, Sister, you know that I have a very prosperous business. But now I'm getting old and my only daughter is of marriageable age. I am looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and would also handle my business well. पिताजी के मित्र बताते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी एक जवान बेटी है। उसके लिए मैं एक योग्य युवक के तलाश में हूँ। मुझे ऐसा दामाद, सन इन लॉ चाहिए जो मेरी बेटी का ख्याल रखे और मेरा बिजनेस, व्यापार भी संभाले। आगे वो मित्र माताजी से कहता है, I like all your sons. If you permit, I will marry my daughter to one of them. But before that, I have a plan. वे कहते हैं, मुझे आपके तीनों बेटे पसंद हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके किसी एक लड़के से मेरी बेटी की शादी करा दूंगा। पर उससे पहले मेरे पास एक योजना है। योजना सुनकर माताजी भी तैयार हो जाती है। He discussed the plan with her and she agreed quite readily. The next day, the friend went to each of three brothers one by one. He gave them each a sack of rice and said, My dear boy, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back. अगले दिन पिताजी के वे मित्र उन तीन भाइयों के पास एक एक करके जाकर वन सैक ऑफ राइस यानी एक चावल की बोरी देकर कहते हैं, मैं कुछ महीनों के लिए एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। मेरे वापस आने तक तुम इस सैक ऑफ राइस यानी चावल की बोरी का ख्याल रखना। और वो वहां से चले जाते हैं। काफी महीने बीत जाते हैं पर पिताजी के वे मित्र वापस नहीं लौटते। लगभग एक साल बाद वापस आकर वो सबसे बड़े भाई को उसके दुकान में जाकर मिलते हैं।
The elder brother welcomed him and gave him a small purse full of money. बड़ा भाई पैसों से भरी एक छोटी थैली देकर उन्हें कहता है, Uncle, you had left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it may get spoiled. Therefore, I sold the rice to my customers. Here is the money I got. Please accept it. बड़ा भाई बताता है कि काफी महीने बीत जाने के बाद मुझे उस चावल की बोरी की चिंता होने लगी कि वो चावल खराब ना हो जाए। तो मैंने उन चावल को मेरे ग्राहकों को बेच दिया और चावल बेचकर ये पैसे मिले। आप कृपया इसे लीजिए। बड़े लड़के का ऑनेस्ट यानी ईमानदार स्वभाव से खुश होकर वे मित्र कहते हैं, थैंक यू माय बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन। Then the friend went to see the middle brother, who was priest. The priest greeted, welcomed him with the joy and affection. अब पिताजी के वो दोस्त दूसरे लड़के के पास गए जो पुजारी था। उसने पिताजी के मित्र का बड़े प्यार और आनंद से स्वागत किया और कहा, Uncle, remember you had left a sack of rice with me an year ago. I have kept it for months, but then I was worried that it may get spoiled. I distribute the rice among the poor in your name. They all blessed you for satisfying their hunger. पुजारी लड़का उन चावल की बोरी की याद देते हुए कहता है कि बहुत समय बीतने के बाद मुझे उस चावल की बोरी की चिंता होने लगी, तो मैंने उस चावल को आपके नाम से गरीबों में बांट दिया। गरीबों ने आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है। आगे वो मंझला भाई कहता है, However, I did that without your permission, and I am willing to pay you back for the rice. मंझला लड़का अपनी बात रखते हुए कहता है कि मैंने आपकी चावल की बोरी आपकी परमिशन के बिना गरीबों में बांट दी, इसीलिए मैं आपको आपके चावल के बोरी के पैसे देने चाहूंगा। लड़के का उदार, काइंड, दयालुपन देखकर वो मित्र कहते हैं, नो माय बॉय, यू एक्टेड वाइजली एंड काइंडली। द ब्लेसिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम द पुअर पीपल आर इनफ फॉर मी। प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनीमोर। वो पिताजी के मित्र पुजारी लड़के ने दिए हुए पैसे नकारते हुए कहते हैं, मेरे लिए गरीबों का आशीर्वाद ही सब कुछ है, तुम पैसों की चिंता मत करो। When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect. जब पिताजी के मित्र सबसे छोटे वाले लड़के के पास जाते हैं, तो वो छोटा वाला लड़का उनका बड़े आदर पूर्वक स्वागत करता है। But he said that he had a confession to make. The sack of rice was lying with me for a long time. But then I had an idea. छोटा लड़का अपना बयान देते हुए कहता है, मेरे पास आपने रखी हुई चावल की बोरी काफी समय से पड़ी हुई थी। बाद में मुझे एक योजना सूझी। I often go to a neighboring farm to help with the work. I borrowed an unused plot of land from the farmer. I exchanged the sack of rice for paddy and saw the paddy in the plot. वो लड़का बताता है कि मैं अक्सर बाजू के गांव में काम करने के लिए जाता था, तो वहां मैंने एक किसान से जमीन खरीद ली और चावल के बदले धान खरीदकर उस जमीन में बो दिया। Fortunately, the crop grew well
and yield 25 sack of rice. I have kept back 5 of the sack and sold 20 of them. Here is the money. आगे लड़का कहता है, फॉर्चुनेटली देवयोग से फसल भी अच्छी आई। उस फसल से 25 बोरी चावल मिले। उसमें से 5 बोरी चावल मैंने अलग रखे और बचे हुए 20 बोरी चावल मैंने बाजार में बेच दिए। ये 20 बोरी चावल के पैसे हैं। आगे अपनी बात रखते हुए लड़का कहता है, If you allow, I would like to keep a part of it as my share, considering the labor and the money I spent to get it all done. आगे लड़का कहता है कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इन पैसों में से कुछ पैसे मेरे पास मेरा श्रम और खेती के काम में खर्च हुए पैसों के बदले में रख लूंगा। A wide smile spread on the friend's face. He had found his future son-in-law. छोटे लड़के की बात सुनकर मित्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें जैसा दामाद चाहिए था, उन्हें वैसा दामाद मिल गया था। छोटे लड़के में वो सभी व्यापारी गुण और काइंड दयालु स्वभाव था जो वो अपने दामाद में चाहते थे। So, this was the story of 3 sack of rice. I hope you enjoy this lesson. Please do like, comment and share. And subscribe to my channel to get more videos. Thank you.